if you are doing like this. Yes. Sairam ma'am. Saira. Okay. So whose turn is there today for presentation? Raghav Tiwari. Okay. Harsh. Raghav Tiwari, so are you ready with your presentation, beta? Yes, ma'am. Okay. Start doing. Janil, what does it mean, whatever you have sent in chat box? Okay. तुम्हारी टर्न इन सब के बाद है. Raghav, start presenting. Okay, so after Raghav, I think Harsh gave his name. Harsh, till Raghav is getting ready, you should start presenting. Yes, Raghav is having some ma'am. problem. What should I present? Ma'am, I Okay. am ready. Okay, start presenting. What should I present? हाँ, अपना कैमरा ऑन करो सबसे पहले. Yes. Which chapters I told you for presentation? Chapter number, ma'am, जो ma'am एक second. 4, 5, 6. 4, 5, 6, right? Yes, ma'am. 6 का जितना हुआ उतना. हाँ, okay. Okay, let me take out the book, then I'll let you know which question you have to present. Just give me 1 minute. Okay, Raghav? नहीं, Raghav नहीं. Harsh. Yes, ma'am. In 4th chapter, I think in last exercise 4.3. What is the last question? Ma'am, in which exercise? Last exercise, last question, 4th chapter. Ma'am, 4.4. हाँ. Ma'am, What last is the question last is question? solve the following riddle. हाँ, yes. So that riddle you should solve and explain us. Yes, ma'am. Ma'am, should I have to explain it in my copy? हाँ, yes. You have to explain your note and others should pin the heart. जब भी कोई प्रेजेंटेशन करता है ना बेटा, पिन कर, आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही दिखेगा, तो आप उसको उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से देख सकते हैं. Okay. Okay, ma'am. Now I am doing. Harsh, start. Solve that. Yes. Yes, you should solve that in your notebook and Yes, focus ma'am. your camera on your notebook. Yes, very good. Yes, ma'am. Ma'am, first is I am a number. The number is not given. Okay. Tell my identity. मेरी आइडेंटिटी बताओ. टेक मी 7 टाइम ओवर. मुझे 7 टाइम ओवर मानो. तो नंबर जो है 7 टाइम ओवर नंबर 7 है और जो नंबर दिया नहीं गया है, लेट द नंबर बी एक्स. तो हम उस नंबर को एक्स ले लेंगे. फिर एड
50 ऐड करेंगे, मतलब +50 उसमें करना है हमें। उसके बाद टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी तक रीच करने के लिए हम 300 ट्रिपल सेंचुरी का लिखेंगे। उसके बाद यू स्टिल नीड 40, फिर भी आपको अभी 40 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे -40 करेंगे। फिर मैम इसको सॉल्व भी करना है मैम। हाँ, पूरा ही क्वेश्चन ही तो एक्सप्लेन करना है। ओके मैम, नाउ 7x + 50 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हमने 300 में से -40 करा है, तो 2 कितना बचा, 260 बचा। उसके बाद हमें फिर यहाँ पे 7x लिखना है, और फिर हम 5 को जो है ट्रांसपोर्ट कर देंगे RHS में। तो वो अभी ये 50 है, हम उसे RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो वो प्लस का है, तो ये माइनस में बनेगा। तो 260 - 50, 7x इक्वल्स टू 260 - 50, 210। नाउ तो हमने इसको वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट करा है, तो ये जो 7 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये आगे होके अब डिवाइड होगा, तो x 210/7, तो 7 1 7 7 2 14 21 40, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा 40। हाँ, मैम सॉरी मैम, डिवाइड इट अगेन। इसमें यस मैम। 210 divided by 7, what is the answer? मैम द आंसर I'm wrong. 30 मैम, 30 मैम, आंसर विल बी 30। हाँ, yes, 30. So what is 30? मैम 30 is the x, 30 equals to x, the number x will be 30। Yes, x will be 30. यस मैम। Okay, okay, ठीक है। हर्ष, यस मैम। you solved the question correctly, but at the beginning first you have taken number 7. तो 7 Yes, क्यों ma'am. लिया बेटा पहले? मैम What उसने is बोला the riddle? मैम टेक मी 7 ओवर, मुझे 7 पहले लो। 7 पहले नहीं, तो पहले तो नंबर ही नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विथ लेट द नंबर बी x, देन X, yes, किसका ma'am. 7 टाइम किसका? x तो का। पहले वो तो, हाँ, तो पहले x को लाना पड़ेगा ना। फर्स्ट यू शुड से ओके मैम। लेट द नंबर बी x, देन टेक मी 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स मतलब किसका 7 टाइम्स? x का, सो x का 7x। हाँ, 7x, देन व्हाट एल्स इज गिवन आफ्टर दैट? प्लस add a 50 to me। Add a 50 to me, so you have added 50 to 7x, so 7x plus 50, okay, is 50, equals to, yes then ma'am। you have written to reach the triple century Triple century, means yes। 300, yes, 300। 300 था। हाँ, अब तुमने उसमें से 40 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये बताओ? मैम उसने बोला आपको अभी भी स्टिल 40 चाहिए, आपको अभी भी 40 की जरूरत है। जरूरत है तो तुमने तो सब्ट्रैक्ट किया है, 300 में से 40 का सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? आई वांट टू नो दैट। Ma'am, her voice is breaking. बेटा तुम्हारा क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया दैट इज करेक्ट, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाई यू हैव सब्ट्रैक्टेड 40 फ्रॉम 300। तुमने कहा और जरूरत है, तो और जरूरत होती है तब तो हम ऐड करते हैं। यस मैम। हु कैन एक्सप्लेन दिस? हर्ष, पहले यस तो मैम। तुम ही बताओ बेटा क्यों किया है उसको। हाँ, why you have subtracted 40 from 300? Ma'am, I also have done in my notebook this type of also। तो बेटा मैथ्स के क्वेश्चन रटते थोड़ी ना, इस कॉन्सेप्ट समझ में आना यस चाहिए मैम, ना। सही तो कॉन्सेप्ट, किया, यस मैंने थोड़ी मैम, बोला कि यस तुम्हारा मैम।
जो सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन इज राइट, यू सॉल्व इट करेक्टली, बट Yes, ma'am. व्हाई यू हैव सब्ट्रैक्टेड दैट? हाँ, तो वो हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। Yes, ma'am. हाँ बताओ, आशीष, आशीष Yes, ma'am. बेटा बताओ, उसने 40 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया? ही हैज रिटन 300 माइनस 40। सारे बच्चों ने साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया है अपनी नोटबुक में? सारे बच्चों ने सॉल्व किया है या नहीं? All of you just switch on your camera and show your notebook whether you have solved the same question in your notebook or not. आशीष, why not? बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो प्रेजेंट कर रहा है उसे तो करना ही है, साथ साथ आप लोगों को अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ये बात ध्यान रखना आगे से। अभी मैंने फिर से बताया है, बट यू शुड कीप इट इन योर माइंड बिकॉज फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग देन ओनली आई कैन आस्क टू यू। अगर आपने खुद सॉल्व नहीं किया है नोटबुक में तो आप स्टेप को फिर इतना याद नहीं रख सकते, क्योंकि अब हर्ष ने तो नोटबुक से फोकस हटा लिया है। नाउ हर्ष इज विजिबल, हिज नोटबुक इज नॉट विजिबल। यस, ये कौन नोटबुक आपको शो कर रहा है यहाँ पर? यहाँ ये नाम किसका है? लेट मी सी, नेम इज नॉट कमिंग। Madhi. हाँ करेक्ट है, बट अदीब, यस अदीब ने बहुत अच्छे से किया। अदीब वेरी गुड। अदीब, कैन यू टेल मी बेटा व्हाई इन फर्स्ट स्टेप 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 300? 40 को क्यों सब्ट्रैक्ट किया 300 से? Ma'am, your voice is not clear. ओके राघव शर्मा, Ma'am, अदीब बोलो, देन Ma'am, because we need 40 more to reach 300. तो नीड तो हमको तो और चाहिए होता है, तो हम ऐड करते हैं। अभी यहाँ 40 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ये शुड योर नोटबुक राघव और अदीब। पहले अदीब तुम बताओ। राघव तुम बताओ। ma'am, ma'am, the concept to reach a triple century and we still need 40. So, ma'am, 40 is minus by बेटा because बीच बीच में माइक ऑन नहीं करेंगे। ma'am, because राघव शर्मा तुम एक्सप्लेन करो। ma'am, the question says to reach a triple century, you still need 40. Ma'am, you still need 40, ma'am. So, ma'am, we minus by 40 to 100, ma'am, 300. ये तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, तुम लोग क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो बेटा। शुभ्रा, कैन यू एक्सप्लेन इट? मैम हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 7x + 50 + 40 = 300। हाँ यस, अच्छा लेकिन ठीक है, अभी तो जो लिखा है वो भी करेक्ट है। लेकिन मैम क्यों जब हमने 40 को RHS में ट्रांसपोज किया इसीलिए वो -40 हुआ। वो तो ठीक है -40, लेकिन अगर इस स्टेप को जैसे हर्ष ने लिखा है वहां से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जेन्युल मैम क्वेश्चन में ये दिया है कि टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। तो ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने तक तुम्हें 40 की और जरूरत होगी, तो 300 - 40। यही तो सब बोल रहे हैं, तुमने अलग क्या बोला बेटा? अभी मतलब जो इक्वेशन है, मतलब अगर x का हम 7 टाइम्स कर देते हैं और उसमें 50 ऐड भी कर देते हैं, तो ये जो LHS है इसकी वैल्यू अभी भी ट्रिपल सेंचुरी से 40 कम है, इसलिए हमने माइनस करके 40 लिखा है। इसलिए -40, हाँ इसलिए हमने -40 लिखा है, क्योंकि वो उससे कम है। अभी इक्वेशन बना रहे, बैलेंसिंग कर रहे हैं, so that's why we have written -40. okay, ठीक है हर्ष, गुड। हाँ प्राची, इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन वो तो तुमने वही लिखा है जो तुमने शुभ्रा ने बोला है। इन द सेम वे यू हैव रिटन।
Sure. Let me see about your attendance. Name is not there. Yes, I can see in your notebooks. Okay. Class list names I am not getting. Just wait. Okay. After Harsh, who will present? Harsh के बाद हाँ, Ma'am, you राघव asked तिवारी. me only Are one you ready? question. हाँ. Okay. राघव तिवारी. मैम जैनुल. नहीं, राघव तिवारी is ready. Yes, ma'am. Are you ready? जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करो बेटा. एक ही बच्चे का प्रेजेंटेशन हो पाए इतनी देर में. अब तक स्टैटिस्टिक्स क्लास में एक दिन में 7-8 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दे दिया. You people must be ready बेटा for your presentations. Ma'am, I am ready. मैं कैमरा ऑन करो. I am asking one question to you. Yes, ma'am. Just wait. क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में. फोर्थ चैप्टर 4.3 है. Yes, ma'am. Read that question first. Ma'am, कौन सा? Because in my book it is not visible. Irfan. Yes, now it is coming. Just wait because some network issue is there. I am taking out the book. Let me see it. मैम 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन. Question I am asking. 4.4 का 3rd क्वेश्चन. Yes, 4.4 question number 3. That let me take it out. Yes, 4.4 question number 3 first part. Raghav Tiwari, read the question. Yes, ma'am. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmit have? हाँ, okay. So this question you have to explain it to us. मैम क्वेश्चन में है कि इरफान के पास 7 मार्बल्स हैं, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज. तो इरफान के पास हो गए मोर देन. अपनी नोटबुक पे कैमरा फोकस करो राघव. जैसे अभी हर्ष जो लिख रहा था वो हमें दिख रहा था अच्छे से. मैम दिख रहा है? हाँ बेटा, जस्ट इसमें Raghav, make the equation.
राघव, राघव, बोलते भी जाना है बेटा, लिखने के साथ साथ, तभी तो पता चलेगा क्या लिख रहे हो। मैम उसने कैमरा स्विच नहीं किया। मैम ऑन तो है कैमरा। कैमरा ऑन है तुम्हारा? यस, हाँ। नोटबुक थोड़ी एडजस्ट करो और बोलते हुए भी जाओ, तभी तो पता चलेगा बेटा लिख क्या रहे हो। 7 is equal to 37. 5x plus 7 minus 7 is equal to 37 minus 7 is equal to 5x is equal to 30. Then x is equal to 30 divided by 5. Then x is equal to 6. x equals to 6। उल्टी है। राघव, अपना माइक ऑफ करो। राघव शर्मा, बीच बीच में नहीं बोलो। वैसे भी तो सबको आपको अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और ध्यान देना है। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ। हाँ बेटा राघव तिवारी, रीड द इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप में जो तुमने इक्वेशन बनाई है उसे रीड करो जल्दी से। 5x plus 7 is equal to 37. ओके, ये कैसे बनी इक्वेशन? 5x plus 7 equals to 37। Yes, ma'am. इरफान says that he has 7 marbles. उसके पास 7 marbles है, more than 5 times the marble permit has. तो मैम इरफान के पास 7 marbles हैं और परमित के पास हो गए 5x. तो मैम इरफान has नहीं, 37. गलत गलत। उसके पास क्या सिर्फ 7 मार्बल्स ही है? Yes, ma'am. इरफान के पास क्या सिर्फ 7 मार्बल्स ही है? इरफान इज हैविंग ओनली 7 मार्बल्स। I'm 37. इरफान के पास 37 है, तो अभी तुमने बिगनिंग में तो बोला इरफान हैज 7 मार्बल्स। मैम इरफान बोलता है उसके पास 7 मार्बल्स प्लस 5x है. 7 plus 5x. इरफान सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तुम, तो ये मुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा है। मैम इरफान बोल रहा है कि उसके पास 7 मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स है, मतलब 5x plus 7. तो और फिर उनका जो सम हो रहा है, किसके 5 टाइम्स ज्यादा है? किसके 5x से 7 ज्यादा है? किसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है बेटा? what? तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। रितु, रितु, एम आई ऑडिबल? रितु बेटा कैमरा ऑन करो जल्दी से। 2 बार नाम लिया इसका मतलब तुम वहां नहीं हो, ये बेटा सब समझ आता है। कैमरा ऑफ करके जो बैठे रहते हैं ना, क्या चल रहा है। जेन्यूल, कैन यू एक्सप्लेन? यस मैम। अदीब ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। सबसे सिंसियर बच्चा इस क्लास का है तो अदीब और शुभ्रा। कोई भी काम बोलते हैं तो फटाफट वो बिल्कुल सिंसियरली उसको करके बताते हैं, दोबारा बोलना नहीं पड़ता है। कैमरा नहीं ओपन है लेकिन तुम्हारा माइक तो ओपन हो सकता है। रितु, चैट बॉक्स में मैसेज भेज रही हो तो? यस मैम। फिर माइक ऑन करना चाहिए ना जल्दी से। इट डज नॉट टेक टू मच टाइम टू ओपन द माइक। यस, अब तुम बताओ, राघव ने जो इक्वेशन बनाई है 5x plus 7 is equals to 37, क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? अच्छा, अब इसको, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करो, कैसे बनी है इक्वेशन? रितु, इक्वेशन कैसे बनी जल्दी बताओ।
शुभ्रा और अदीब इन लोगों का देख लिया है मैंने, रितु को आया नहीं है इसका मतलब। ये जो बेटा तुम आंसर नहीं देते हो बार बार पूछने के बाद भी, इन सब पे तुम्हारी मार्किंग चल रही है, ये ध्यान रखना। परम, परम, Yes, ma'am. कैन यू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन, कैसे बनी है इक्वेशन? मैम नहीं दिख रही है इक्वेशन। देखने की क्या जरूरत है, तुमने खुद नहीं बनाई क्या? स्विच ऑन योर कैमरा एंड No, शो ma'am. योर नोटबुक, शो योर नोटबुक। परम, मैम मैं लीव हो गया था इसलिए मैं बना नहीं पाया। अच्छा तो लीव हो गए थे तो क्वेश्चन तो सुना था ना? मैम मैं अभी बना के दिखा दूं? परम ये सही है नहीं है, मैंने जब भी क्वेश्चन रीड करने को बोला था और टाइम बहुत लगा था उसको क्वेश्चन को रीड करने में भी, क्वेश्चन पूरा तुमने अच्छे से सुना था। अगर तुम बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू या किसी भी इशू से आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाते हो अगर, तो आपको तुरंत उसको ज्वाइन करना तो है ही, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन तो सॉल्व करो। क्वेश्चन तो नोटबुक में सॉल्व करना था, एटलीस्ट इक्वेशन तो बनी जानी चाहिए थी अभी तक। ये बेटा है ना एक्सक्यूजेस समझ में आ जाते हैं, फिर मार्किंग तुम बोलना मत कि हमारी अच्छी मार्किंग नहीं हुई। जैसा तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा वैसे ही मार्किंग होगी, फ्री के नंबर नहीं बटेंगे बेटा, समझ लेना। यू हैव टू बी अलर्ट फॉर एवरीवन दिस इज। और ये जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ही फायदा होगा, जो ये बीच बीच में सोचते हैं कि अभी हमारी टर्न नहीं है या किसी और की टर्न चल रही है या प्रेजेंटेशन खत्म हुआ एक का तो मैम अब क्रॉस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन करेगी तो मीटिंग लीव कर जाओ। तो जो मीटिंग में नहीं रहेगा ना फिर उसकी मार्किंग भी वैसी ही होगी। और जो बच्चा जितने क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से देगा, ऐसा नहीं कि हर इसमें मैं करने लग जाए, लेकिन जब भी आपकी चांस आए, जब भी आपसे पूछा जाए आप कितना अच्छे से आंसर दे पाते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो ईच एंड एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, चाहे वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन चल रहा हो या किसी और का प्रेजेंटेशन चल रहा हो। रेणुका, नाउ यू शुड एक्सप्लेन दिस इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन हैज बीन मेड, कैसे बनी ये इक्वेशन? मैम मैम Renuka, start explaining. Are you there? Raghav Sharma, you were saying something. Bolo. यस मैम यस मैम दी मैम let the number of marbles permit has be m. And ma'am, Irfan says that he has 7 marbles. इरफान के पास 7 मार्बल्स है क्या? इरफान ने ऐसा तो बोला ही नहीं है कहीं भी, उस स्टेटमेंट से तो ऐसा मीनिंग निकलता ही नहीं है बेटा। So ma'am, 5 and बेटा and हिंदी में permit भी has एक्सप्लेन कर Irfan has सकते हो, 37 इन marbles. हिंदी इंग्लिश So बोथ ma'am, यू कैन एक्सप्लेन। okay ma'am. मैम इरफान ने कहा मैम वेट जेन्युइन, मैम हर्ष वर्मा। नो ऐसे बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं चांस दूंगी। देखो शुभ्रा ने चैट बॉक्स में लिखा है शी इज शोइंग इट थ्रू द नोड एप्लीकेशन, आप इस तरह से पूछ सकते हो। मैम हाँ राघव शर्मा मैम जल्दी बोलो। मैम जो इरफान है मैम उसने कहा कि उसका 7 marbles more than the 5 times of the permit has. So ma'am 5m plus 7 and ma'am after it Irfan has 37 marbles. How many marbles does permit have? So ma'am the equation will be 5m plus 7 is equal to 37. शुभ्रा नाउ यू एक्सप्लेन। मैम ये आए नो मैं आए तो Yes, ma'am. हाँ बोलूंगी नहीं मैं। हाँ
तो इस इक्वेशन में हमें परमित के पास कितने मार्बल्स हैं वो पता नहीं है, तो हम मानते हैं कि परमित के पास x मार्बल्स हैं। तो इक्वेशन में इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने मार्बल्स हैं उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 7 ऐड करेंगे, उतने मार्बल्स हैं इरफान के पास। उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि उसके पास 37 मार्बल्स हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हम बनाएंगे 5x + 7 = 37, क्योंकि इरफान बोलता है कि उसके पास परमित के पास जितने मार्बल्स हैं उससे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x, उसके बाद 7 ऐड करेंगे तो 37 आएगा आंसर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो 5x = 37 - 7 इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ से 7 को RHS में ट्रांसपोज करके माइनस में ले जाएंगे। उसके बाद 5x = 30। जब हम 37 से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 5 को भी हटाना पड़ेगा। तो 5 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, इसलिए परमित के पास 6 मार्बल्स हैं। ओके, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। बेटा ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना, इसका एक फायदा तुम्हें ये भी है कि जैसे मान लो अभी हर्ष की चांस थी, जब हर्ष प्रेजेंटेशन दे रहा था उस वक्त वो किसी चीज को मान लो हो सकता है नहीं प्रेजेंट कर पाया। अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं और हो सकता है कि कोई एक आधी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और बाय चांस ऐसा हो जाए कि वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। आपने पूरे चैप्टर प्रिपेयर किया लेकिन एक आध क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो अब जैसे ये लास्ट में कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जब इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी तो क्या हुआ, वो आंसर दिया उसने, तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। समझ में आ रही है बात? एक आध किसी क्वेश्चन का आंसर आप इनकेस नहीं दे पाते हो किसी कारण से, तो बाकी तैयारी कैसी है ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग से पता चल जाता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू ईच एंड एवरीवन। प्रेजेंटेशन अगर हर्ष दे रहा है तो भी क्वेश्चन किसी से भी हो सकता है, राघव दे रहा है तो भी हो सकता है। इन दैट वे इट कैन बी डन। जैसे अभी ये क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन कर रहा था, सबसे पहले किसकी चांस थी? हु मेड द इक्वेशन? मैम राघव तिवारी। हाँ, वो राघव तिवारी को ही बोलने दो बेटा, उसको भी पता है कि वो प्रेजेंट कर रहा था, राघव तिवारी। अब राघव तिवारी ने बता दी इक्वेशन, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन उतने अच्छे से इक्वेशन कैसे बनी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब उसने सुन भी लिया, अब हो सकता है किसी और क्वेश्चन का आंसर वो और अच्छे से देगा तो समवेयर उसके मार्क्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, और मार्क्स के साथ साथ तुम्हारा तैयारी क्या है तभी तो सही मार्किंग हो पाएगी ना। मैंने तुमने 3 चैप्टर टेस्ट लेते हैं, 3 में से कोई एक क्वेश्चन मान नहीं आ रहा और वही आ गया आपके पास और वो नहीं बता पाया और उस पर मैं मार्किंग दे दूं तो वो सही नहीं होगा ना। तो क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू तुम एक ही बच्चे से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैम। ओके जेन्यू, यस मैम। माइक क्यों ऑन कर रहे हो? मैम आई एम रेडी। राघव तिवारी के बाद किसकी चांस थी? मैम माय। राघव तिवारी के बाद किसकी चांस? मैम राघव शर्मा। माय नहीं, नाम बोलो। मैम जैनुल। राघव शर्मा। चैट बॉक्स में लिखा था क्या तुमने? मैम मैंने लिखा था मैम। Yes, राघव ma'am. तिवारी। हाँ राघव शर्मा, तो फिर स्टार्ट प्रेजेंटेशन जल्दी से, 5 मिनट में दे रही हूँ तुम्हें। नोटबुक पे कैमरा फोकस करो बेटा। And let me take out the question. Let me tell you the question. Your question is, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज रन्स राहुल। दिस क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन। सचिन स्कोर्ड वाला जो अभी एक्सरसाइज से इरफान वाला क्वेश्चन दिया था, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, सचिन स्कोर्ड मिला?
Have you got the question, Raghav Sharma? Switch on your mic. Yes, ma'am. Read the question, Raghav. और तुम्हें अपना माइक ऑन रखना है क्योंकि तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो. C. Sachin scored twice as many runs as Rahul together. Their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? एक्सप्लेन करो उसे. राघव माइक ऑन रखो बेटा. कैसे पता चलेगा तुम क्या बोल रहे हो? बोलते Yes, जाना है. मैम the Sachin scored twice. मैम जो सचिन है मैम उसने मैम राहुल के दो ज्यादा बार रन्स बनाए हैं. Their runs fell too short of a double century. How many runs did score? आता है क्या ये क्वेश्चन तुम्हें? टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी जल्दी बताओ. आता है तो इक्वेशन बनाओ, जल्दी से नोटबुक में लिखो. Yes, ma'am. Sachin scored as many runs as Rahul together. Their runs fell too short of a double century. राघव सिर्फ 2 मिनट और बचे हैं. अगर आप इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर नहीं चांस मिल पाएगा बेटा. चलो ठीक है राघव, कल मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन. अब मुझे जरा, मैं अटेंडेंस के नाम पढ़ रही हूँ, जस्ट लेट मी नो किसका नाम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 18 नेम्स आर देयर. ध्यान से सुनना सारे बच्चे अपना नाम. ओके शुभ्रा. अनिल, अनमोल, परम, ऋषिका, जैन्युल, आशीष, प्राची, कृष्णा, अदीब, ऋतु, तनिष्का, राघव, रुद्र, शुभ्रा, राघव तिवारी, हर्ष, राधिका, रेणुका. किसका नाम नहीं आया है जो क्लास में था? मैम हिमांशु. हिमांशु. हिमांशु का नाम क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, एक हिमांशु आ गया. हिमांशु का नाम अब ऐड हो गया जहां तक. और बोलो हिमांशु के अलावा. मैम आशीष भी था. आशीष का नाम है. हिमांशु के अलावा मैम आशीष ज्वाइन होकर लेफ्ट कर दिया था. आशीष का नाम है. आशीष का नाम नहीं लो बार बार. दूसरा कौन है? और कौन है गर्ल्स में कोई जो क्लास में थे और नाम नहीं है? आई कैन सी ओनली 19 नाउ हियर, जबकि मैंने क्लास में देखा था 23-24 स्टूडेंट्स थे. हर्ष, तुम्हारे आसपास के अल्फाबेट्स में नाम में कोई प्रेजेंट था क्लास में और जिसका नाम नहीं लिया हो? एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ. आई डोंट नो. सब ध्यान से सुनना, अपने आसपास का नाम सोच लेना कि थे क्लास में और नाम नहीं आया है. अनिल, अनमोल, परम, ऋषिका, जैन्युल, आशीष, प्राची, कृष्णा, अदीब, हिमांशु, ऋतु, तनिष्का, राघव शर्मा, रुद्र, शुभ्रा, राघव तिवारी, हर्ष, राधिका और रेणुका. मैम दीक्षा. दीक्षा थी? दीक्षा क्लास में? दीक्षा क्लास में थी? हाँ मैम वो अभी भी है. अभी भी है. दीक्षा तो अपना माइक ऑन करके बोलो दीक्षा, तब तुम्हारा नाम ऐड होगा. हिमांशु ने बोला तो हिमांशु का नाम आ गया था.
दीक्षा, switch on your mic. दीक्षा, अच्छा दीक्षा के अलावा चित्रांशी, चित्रांशी भी तो थी। चित्रांशी का नाम नहीं लिया ना मैंने, चित्रांशी, दीक्षा और चित्रांशी 21 और ऋतु तुम्हारा नाम लिया है, यस। चलो ठीक है, ओके। ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। चित्रा और दीक्षा और चित्रांशी के अलावा और कोई है तो मुझे बताओ। बाय मैम, मैम। ओके, सायराम। साईराम मैम। सायराम, सायराम। Thank you, ma'am. साईराम मैम, थैंक यू मैम एंड बाय मैम। बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Ma'am, in my laptop there are 20 students, including you present. हाँ, ओके। चित्रांशी वॉज देयर, राइट? चित्रांशी को, क्योंकि आई हैव सीन द मैसेज चित्रांशी लेफ्ट द मीटिंग, वो देखा था क्योंकि मैंने, और उसका नाम नहीं है। ओके।